اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نماز میں بھی ماسک لگا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ کیا نماز میں بھی ماسک لگایا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ موجودہ حالات میں عارضی طور پر نماز میں بھی ماسک لگانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ فقہ اسلامی کی کتابیں دیکھیں جیسے بحر شریعت، در مختار، شامی وغیرہ، تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ منہ اور ناک ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ کراہت بھی سخت والی ہے، بڑی والی ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ بس ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ دراصل منہ اور ناک بند کر کے عبادت کرنا یہ شعار ہے مجوس کا۔ شعار کا مطلب جس سے کوئی قوم پہچانی جائے، دور سے دیکھیں آپ تو پہچان لیں کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے۔ مثلا داڑھی خاص طریقے سے رکھنا ہم مسلمانوں کا شعار ہے، تو دور سے کسی داڑھی والے کو، خاص طور پر داڑھی رکھے ہوئے شخص کو آپ نے دیکھا تو دیکھتے ہی آپ جان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ داڑھی یہ مسلمان کا شعار ہے اور اس کی پہچان ہے۔ یا جیسے خاص قسم کی پگڑی یہ سکھ قوم کا شعار ہے، تو دور سے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ شخص جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس طرح کی پگڑی وہی لوگ باندھتے ہیں، دوسرے نہیں باندھتے ہیں۔ تو شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز، کہ ایسی نشانی، علامات کہ جس کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو شعار کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اب سمجھیے، پہلے زمانے میں منہ اور ناک ڈھک کر بلفظ دیگر، آج کے الفاظ میں کہہ لیجئے ماسک لگا کر عبادت کرنا یہ شعار تھا قوم مجوس کا، کہ اس طور پہ عبادت کرتے ہوئے کوئی دیکھا جاتا تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ مجوسی ہے۔ لیکن کیونکہ وہی ایک قوم تھی جو جو یہ خاص قسم کا ماسک لگاتی تھی، فیس کور لگاتی تھی، مگر کیا آج کے زمانے میں بھی یہ ماسک اور فیس کور قوم مجوس کا شعار رہ گیا ہے؟ ایسا نہیں۔ آج تو مجوس ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں یا دوسری قومیں ہوں، ہر قوم ماسک لگا رہی ہے۔ کیا آفس ہوں اور کیا خالی جگہ ہوں، کیا بازار ہوں، ہر جگہ ہر قوم کے لوگ لگا رہے ہیں۔ آپ ماسک کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکھ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہے، کیونکہ جب سب لگا رہے ہیں، سب کے سب ایک گنگا میں نہا رہے ہیں، تو کیا پہچان ہے کہ یہ کس قوم کا ہے؟ خلاصہ یہ کہ آج ماسک کا استعمال، فیس کور کا استعمال یہ کسی خاص قوم کا شعار نہیں رہ گیا۔ شعار تھا اس لیے نماز میں اس کا استعمال مکروہ تھا، آج شعار نہیں رہ گیا تو وہ کراہت کا حکم بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر ہم اس کی مطلقاً اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کورونا وائرس کا زور ہے، یا جب تک کورونا وائرس اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس وقت تک آپ اپنے کو بچانے کے لیے اور سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے فیس کور کا اور ماسک کا استعمال کیجیے۔ نماز کے باہر بھی کیجیے اور نماز کے اندر بھی کیجیے، نماز کے اندر بھی اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، ہم اپنے نمازی بھائیوں سے ایک مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ جن لوگوں کو کھانسی آنے کی بیماری ہو، سانس کی بیماری ہو، بخار ہو اور چھینک آتی ہو، تو آج کے زمانے میں
चूंकि ये बीमारी ज़रर और ईजा का बाइस बन रही है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोग कहें चाहे ना कहें, मगर इतना तो है कि जमात में ऐसे 2-4 आदमी आ जाएं जो बार बार छींकें और बार बार खांसें और कुछ बलगम इधर उधर हंसकोले ले, तो सबको ये बुरा लगेगा कि, और सबको डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हम तक उसका वायरस मुंतकिल हो जाए। तो कोई कहे ना कहे, लेकिन आम तौर पे लोगों के दिल में ये बात पैदा होगी और इसकी वजह से तकलील जमात भी हो सकती है। यानी बहुत से लोग जो कमजोर दिल हैं, कमजोर ईमान है, ऐसा भी हो सकता है कि सोचें कि क्या करें, हम जाएंगे तो लोग ऐसे भी आकर बगल में खड़े हो जाते हैं, चीखते हैं, खांसते हैं, तो हमको भी बीमारी आ सकती है, तो फिर वो जमात से ही बचेंगे। तो मेरे दोस्तों, जिनको इस तरह की बीमारी हो गई, अल्लाह आपको महफूज रखे, हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको शिफा फरमाए और आपकी बीमारी दूसरे तक मुंतकिल न हो। बीमारी तो मुंतकिल नहीं होती है, लेकिन बीमारी के वायरस छींकने से और खांसी के दबाव से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। बीमारी क्या मुंतकिल होगी, वो तो हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु ने फरमा दिया, ला अदवा, बीमारी उड़कर एक से दूसरे को नहीं लगती। तो बीमारी तो उड़कर एक से दूसरे को लग ही नहीं सकती है। यह ज़माने जाहिलियत अकीदा था, रहा होगा, तो सरकार सल्लल्लाहु ने उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया। तो हम अहले इस्लाम का अकीदा यही है कि बीमारी उड़कर एक से दूसरे को नहीं लगती है। इसलिए आप हरगिज़ ये अकीदा न रखिएगा कि आपके बगल में कोई छींक वाला खड़ा हो गया, किसी को खांसी आ गई, तो इसकी वजह से उसकी बीमारी आपको मुंतकिल होगी। बीमारी नहीं मुंतकिल होती है, बीमारी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जाती है। ये इस्लाम के खिलाफ है, हमारे अकीदे के खिलाफ है। ऐसा अकीदा आप हरगिज़ न रखिएगा। होता क्या है, वही जो मैंने अभी बयान किया कि जब आदमी छींकता है, खांसता है, तो झटके से, खांसी के झटके से या छींक के झटके से ये वायरस निकल कर बाहर आ जाते हैं। बाहर आएंगे, आदमी हर वक्त सांस लेता रहता है कुदरती तौर पर, तो करीब की हवा के जरिए बहते हुए वो आपकी नाक में और गले में, मुंह के अंदर जा सकते हैं और बीमारी का सबब बन सकते हैं। तो बीमारी तो मुंतकिल ही नहीं होती है, न असालतन मुंतकिल होती है, न सबब की हैसियत से मुंतकिल होती है, बल्कि एक नन्ही मखलूक जो अल्लाह की है, जिसका नाम कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस हवा के दबाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है। यानी यह कह लीजिए कि हवा के दोष पे सवार होकर हवा जहां चाहे उसको ले जाती है। तो ये न अदवा है, न तादिया है, न ये इन्फेक्शन है। यानी बीमारी का इन्फेक्शन नहीं, ये बीमारी का तादिया नहीं है। इसलिए आप हरगिज ये एतकाद न रखेंगे। अगर ऐसा एतकाद है तो माज़अल्लाह ये इस्लाम के खिलाफ होगा, इरशाद रिसालत के खिलाफ होगा। इससे तौबा कीजिए। कभी भी आपके दिल में ऐसा एतकाद आया हो तो उससे तौबा कर लीजिए और उससे अपने आप को बचाइए। बात बस यही है कि खांसी वगैरह की वजह से झटके आते हैं, वायरस हवा के दोष पर सवार होता है, हवा जहां चाहे उसको मुंतकिल कर देती है। हवा चलती रहती है तो हवा के जरिए वो भी इधर से उधर मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बीमारी फैलती है और फैल रही है। देखिए, पिछले साल हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की और लोगों के साथ कुछ सख्ती भी हुई, तो उसका हासिल ये था कि बीमारी बढ़ी मगर उसकी रोकथाम भी रही और बीमारी बहुत कंट्रोल में रही। और इस साल कोई गाइडलाइन नहीं है और लोग आजाद हैं, तो बीमारी भी खूब आजाद होकर, बीमारी नहीं, बीमारी से मुराद मेरी वही कोरोना वायरस भी खूब आजाद होकर के इधर उधर नंगा नाच रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो तजर्बा तो हमारे सामने है, नतीजा हमारे सामने है, हम कैसे झुटला दें उसको। इसलिए हम अपने नमाजी भाइयों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि अगर अल्लाह की शान आपको ऐसी कोई बीमारी पैदा हो गई है जिसकी वजह से छींक आ रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो कुछ दिनों तक आप अपने घर में नमाज पढ़ें। हो सकता है अगर मुमकिन हो तो आप अपने एक कमरे में अपने आप को महदूद कर लें, एक कमरे में रहें और वहीं रह करके नमाज पढ़ें ताकि आपकी बीमारी आप तक रहे और फिर मुंतकिल नहीं होगी। धीरे धीरे आप इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। हम आपके लिए दुआ करते हैं। मगर उतने दिनों तक के लिए आप
जमात से रुकें। अगर आप रुकेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस नियत से रुकेंगे कि हमारी वजह से जमात कम न हो, हमारी वजह से लोगों को ईज़ा और तकलीफ न पहुंचे, तो और शरीयत इसकी इजाज़त भी देती है, तो मैं समझता हूँ कि आपके सवाब जमात में भी कमी नहीं होगी। और कम से कम इतना तो है कि जमात छोड़ने की वजह से जो गुनाह होता है उस गुनाह से आप महफूज रहेंगे। सवाब देना तो अल्लाह का काम है, उसकी शान करीमी, वो आपको जितना सवाब देना चाहे दे, उसके खजाने सवाब में कोई कमी तो नहीं है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि यहाँ जमात छोड़ने की वजह से आपको तारिक जमात वाला गुनाह नहीं मिलेगा, इससे आप बचेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप ऐसा करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जानते हैं एक नेक नामी की हासिल होगी। खुदा न करदा, हजार बार खुदा न करदा, अगर नमाजियों में ये वायरस फैलने लगा और नमाजी बीमार होने लगे तो बड़ा गलत पैगाम जाएगा मस्जिदों के हवाले से। कि लोग बावजूद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर भी तो नहीं बचे। तो आप ऐसा ना कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए कि मस्जिदों के हवाले से सारी दुनिया को, अपने मुल्क को भी और सारी दुनिया को भी अच्छा पैगाम जाए और बेहतर पैगाम जाए। ये उसी वक्त हो सकता है जब आप हमारी बातों पर पूरी नरमी के साथ तवज्जो करेंगे। खुदा करे कि आप मेरी बातों पर खास तवज्जो दें और इनके ऊपर अमल करें। हम आप पर लाजिम नहीं करते हैं, लेकिन मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो अच्छा रहेगा। और जो नमाजी आए वो मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है।